So welcome to the students for the new topic of the chapter, that is bending stress. So my new topic is, that is a combined axial load and bending. So this is my new topic, combined axial load and bending. So what is this? Combined axial load and bending. Actually, this is the combination of the two load, you can say. ये क्या है? That is the combination. That is the combination of two loads, right? That is axial load and bending load. ये दो लोड का कॉम्बिनेशन है, एक्शियल लोड का और बेंडिंग लोड का. नाउ in order to understand this, we have to see that under which condition we will get the axial load and the bending load together, right? So what is the situation, you can say, what is the condition where I will get the axial load and bending load together, you understand? So suppose this is your structure member है, this is your structure member, right? This is your structure member, and can say this is its axis, centroidal axis, you can say centroid is here, and this condition arises when you can say this is P and P, and this condition arises when the axial load is not passing through the axis of the member, you can understand. So this condition ये कब arise होती है? जब जो आपका axial load है, suppose this is the centroid on the axis, when it is not passing through the centroid. So when it is not passing through the centroid, so this condition arises where axial load and the bending load, both load will come together and act on the structure member. Now understand how it happens. So first of all, I will just draw the cross section of this. इसका आप क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर आपका कोई स्ट्रक्चर मेंबर है, आप एक क्रॉस सेक्शन इसका ड्रा कर लीजिए. सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन, राइट, एंड दिस इज यू कैन से ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, राइट. सो दिस इज जेड एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन, and this is your y-axis of the cross section. Centroid is here at this point, so the centroid of the cross section is here at the point this, you understand. So your load that is acting at some distance from here, तो आपका ये जो लोड है ये centroidal axis से या z axis से at the distance E, this load is acting here, you understand. So when the condition, ये लिख लीजिए, this is the cross section, right, and this you can say structure member, you understand. This is the structure member and this is the cross section. So now just understand now. This I have drawn the diagram to make you understand here.
combine axial loading and bending. So this is the combination of the two loads, you can say axial load and the bending load, right? And this condition, you can say this condition so this condition arises when the axial load is not acting on the axis of the structural member. You understand? ये कंडीशन कब अराइज होगी? जब आपका जो एक्शियल लोड है वो स्ट्रक्चर मेंबर के एक्सिस के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, और यू कैन से इट इज नॉट एक्टिंग ऑन द सेंट्राइड ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर. You understand this point? ये हमें कब कंडीशन मिलेगी? First point to understand this, how we will get this type of loading conditions when the axial load is not passing through the centroid of the member. Member may be beam, bar, anything you can assume here. Suppose if I will assume the bar here, so this is the member, right? And this is the cross-sectional area of the member. You understand? So here, in order to understand this, you have seen that your load is not passing through the centroid of this member. This is the side view of the cross-section, and from the side view of the cross-section, you will see this is your z-axis and this is your y-axis. Both these axes are parallel to each other, and your load that is not passing through the centroid. If you will see the cross section, you will see that the load is not passing through the centroid. You can say it is lying on the y-axis, but it is not lying on the z-axis. You understand? Y-axis के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि it is y-axis के ऊपर ये पास कर रहा है. What this is the z-axis, so it is not passing through the z-axis. So when such type of condition arises, then you will get the two loading conditions, that is axial load as well as the bending load. You understand? तो ये हो गया पहला, to make you understand how we will get this type of loading condition. This is clear to you? Now you understand. जहां पे तो this is clear. Now we have to, when this load is passing here, so as you know already that if you want to calculate the equation of the stress in case of axial loading condition, तो axial loading condition में क्या होता है? स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस क्या होगा axial loading condition में? that is sigma x ले लेते हैं. yes, stress, this is sigma x. in case of axial loading condition, this is equal to load upon area. This is the formula, you know that, load upon area. But this formula for calculating the normal stress we cannot use here. Now the question is why we cannot use this formula, as जो हमने पढ़ा है आज तक वो यही पढ़ा है कि अगर आपका एक्शियल लोड बार के ऊपर we are applying the axial load, so we can calculate the stress, normal stress, by P upon A, where P is the load and A is the area of the cross section. You understand? But here I am saying that this formula we cannot apply here to calculate the equation of the stress. So then how we can calculate the equation of the stress? First point is why this formula is not valid here to calculate the stress. Reason is that this formula is only valid when your actual load that is passing through the centroid of the member or the axis of the member. When ये जो आपका जो लोड है, अगर ये आपका लोड सपोज इधर से पास करता
इस पॉइंट से, तो देन आप क्या कर सकते थे, ये फार्मूला, you can apply this formula. You understand? What here you have seen that the load is not passing through the axis of the member. That is passing at some distance from the axis of the member or the centroid of the member. So in this case, we cannot find the stress by using this formula. You understand this point? हम क्यों इसको नहीं ये फार्मूला लगा के स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं? क्योंकि जो आपका एक्चुअल लोड है वो सेंट्राइड से पास नहीं कर रहा है या एक्सिस से पास नहीं कर रहा है, बट वो पास कहां से कर रहा है? एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्राइड और एक्सिस. यू अंडरस्टैंड? तो आप क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेस. व्हाट वी विल डू, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो स्टेप होगा, क्या स्टेप होगा, हमें तो स्ट्रेस तो फाइंड आउट करना है, और आप बोलते हैं कि इस तरीके से ये फार्मूला लगा के हम स्ट्रेस को फाइंड आउट नहीं कर सकते. रीजन ये है कि हमारा जो एक्चुअल लोड है वो सेंट्राइड से पास नहीं कर रहा है. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या करेंगे, हम ट्रांसफर द लोड P. हम ये जो लोड है क्या करेंगे, हम ट्रांसफर द लोड P ऑन द सेंट्राइड और एक्सिस ऑफ द मेंबर. जो भी मेंबर है जिसके ऊपर हमने स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है और लोड जिस मेंबर के ऊपर लगा हुआ है, हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांसफर क्या करेंगे, इस लोड को हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे, एक्सिस के ऊपर ट्रांसफर करेंगे. ये सपोज करो ये आपका मेंबर है, कोई स्ट्रक्चर मेंबर है, आप बार ले सकते हैं, यू कैन से दिस इज बार. तो ये स्ट्रक्चर मेंबर है, ये वाला सेम चीज मैंने जहां पे बढ़ाया, एंड दिस इज योर एक्सिस. सपोज दिस इज योर एक्सिस, राइट. ये आपका क्या है, ये आपका एक्सिस है, और अब अपने क्या करना है कि इसको ट्रांसफर करना है एक्सिस के ऊपर. इस लोड को क्या करेंगे, आप ट्रांसफर करेंगे. ये जो P है दैट वी विल ट्रांसफर टू दिस पॉइंट. तो जो आपका लोड है ये आपका क्या होगा, ये जहां से आप ट्रांसफर करेंगे P, ये कहां पे किया आपने, जो इसका एक्सिस था विच इज पासिंग थ्रू द सेंट्राइड ऑफ द मेंबर, ये आपका सेंट्राइड है, तो आपने इस लोड को जहां पे ट्रांसफर कर दिया. तो ट्रांसफर करने से एक तो हमें क्या मिला, लोड मिला, दैट इज P, और दूसरा हमें क्या मिला, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट कैसे मिला, बिकॉज दिस इज द लोड P हियर, और हमने ट्रांसफर किया है इस डिस्टेंस तक, जो E डिस्टेंस था आपका, जहां से जहां तक, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो जब हमने ट्रांसफर किया, एक हमें क्या मिला, लोड मिला, और दूसरा हमें क्या मिला, बेंडिंग मोमेंट मिला. तो ये जो आपका बेंडिंग मोमेंट था, एक ये, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट वी गॉट, दैट इज क्या था, P इंटू E. बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका, E है. सो इट मीन्स दैट व्हेन वी हैव ट्रांसफर्ड द लोड फ्रॉम this point to the on the axis of the member, we got two type of the loads. You understand? हमें क्या मिला, हमें दो टाइप के लोड मिले. We have got two types of load. इसको मिटा देगा. So we have got two types of the load. ट्रांसफर करने के बाद we got two types of the loads. एक मिला, फर्स्ट हमें क्या मिला, एक्शियल लोड, दैट इज P, and second we got bending moment. Second we got bending moment,
दैट इज P इंटू E। तो दो टाइप के हमें लोड मिले। नाउ यू अंडरस्टैंड, अब आपको समझ आ गया है कि जो हमारा टॉपिक का नाम था वो क्या था, कंबाइंड लोड ऑफ द एक्शियल लोड एज वेल एज द बेंडिंग लोड। तो जब समझ आ गया आपको हाउ वी गॉट दिस लोड, in which condition we got two types of the load, किस कंडीशन में हमें, किस सिचुएशन में हमें दो टाइप ऑफ द लोड मिला। कंडीशन क्या थी, सपोज आपका एक स्ट्रक्चर मेंबर है, अब इसको हम कंबाइन करके टोटली कंक्लूड करके बोलते हैं कि एक आपका स्ट्रक्चर मेंबर है, स्ट्रक्चर मेंबर के ऊपर आपका एक्शियल लोड जो है दैट इज एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर मेंबर, बट द कंडीशन इज that load is not passing through the axis of the structure member or not passing through the cross section of the structure member, you understand, centroid of the structure member। तो ये पहली कंडीशन थी कि लोड जो है आपका एसेंट्रिक लोड होगा, इट इज नॉट पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर, यू अंडरस्टैंड। जब ये कंडीशन अराइज होगी तो क्या होगा, हमें दो टाइप के लोड्स, we will get two types of the load, combined axial load as well as the bending load। तो जब ये कंडीशन अराइज होगी we will get two types of the load, that is the combined, हमें axial load मिलेगा और साथ में हमें bending load मिलेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया यहां पे, you understand this। कैसे मिलेगा, क्योंकि we have to find the stress when the condition is like this, load is acting at some distance from the axis and we want to calculate the stress। So if we want to calculate the stress, we cannot calculate the stress directly by using the relation P upon A, load upon area of cross section। Reason is the load is not passing through the axis of the structural member, you understand। load जो है एक्सिस से पास नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस लोड को हम, जहां पे लोड होगा इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे, एक्सिस के ऊपर, सेंट्राइड के ऊपर, जो स्ट्रक्चरल मेंबर का एक्सिस होगा, जो सेंट्राइड होगा उसके ऊपर हम इसको ट्रांसफर करेंगे, यू अंडरस्टैंड। तो ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, हमें एक तो लोड मिलेगा ये P, और दूसरा हमें क्या मिलेगा, बेंडिंग लोड या बेंडिंग मूवमेंट मिलेगा। मींस P जो लोड है आपका, ये लोड क्या है, P है, और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज E, because we are transferring the load from here to here, so we got the bending moment also, and the bending moment that is P into E, you understand the concept of this combined axial load and bending। जो टॉपिक का नाम था combined axial load and bending, how we got this, what is the condition, what is the situation, so this is the reason when we got the combined axial load and bending। तो जहां तक तो ये क्लियर हो गया आपको सारी चीजें कि कंबाइंड एक्शियल लोड एंड बेंडिंग हमें कैसा मिलता है, यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट ये है, जो एक्शियल लोड होगा, एक्शियल लोड से हमें क्या मिलेगा, हमें बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस। एक्शियल लोड से बट वी गॉट द डायरेक्ट स्ट्रेस और द नॉर्मल स्ट्रेस that we got, this is equal to P upon A। ये हमें मिलेगा बेंडिंग लोड से, और बेंडिंग मूवमेंट से we will get the बेंडिंग स्ट्रेस। हमें क्या मिलेगा, बेंडिंग मूवमेंट से हमें बेंडिंग मूवमेंट स्ट्रेस मिलेगा। हमें दो स्ट्रेसेस मिलेंगी, एक तो हमें डायरेक्ट स्ट्रेस मिलेगी और एक हमें बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगी, that is equal to chance। Now the question is, if we want to calculate the total stress on the cross section of the member, तो टोटल क्रॉस सेक्शन स्ट्रेस, हमें क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर वी हैव टू फाइंड आउट।
अब देखिए जहां पे क्या करते हैं हम, एक अनदर वन मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड, इसे आप ध्यान से सुनिए. When there are two loading conditions, right? So when there are two loading conditions, say axial load and the bending load, and in order to calculate the stress on the cross section of any structure member, we will use superposition method. हम क्या यूज करेंगे, हम सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है, दैट वी विल यूज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. यू अंडरस्टैंड. इसको मिटा देते हैं. तो जहां तक तो आपको क्लियर हो गया, और जहां तक क्लियर हो गया कि हमें दो लोड मिले, बेंडिंग लोड एज वेल एज बेंडिंग मूवमेंट एज वेल एज द एक्सियल लोड. यू आर राइट. तो जहां पे देखिए, इन ऑर्डर टू फाइंड the total stress on the cross section of the member, जिसके ऊपर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो जब दो लोड, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, जब दो लोड किसी क्रॉस सेक्शन के ऊपर इकट्ठे अप्लाई हो रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर मेंबर के ऊपर, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द स्ट्रेस, तो क्या करेंगे हम, सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, व्हाट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? व्हेन द टू लोड्स आर एक्टिंग on any structure member and we want to calculate the stresses on the cross section of the structure member, what we will do, we will just separately, इनको हम लोड को क्या करेंगे, फर्स्ट we will separate the load, then separately we will calculate the stresses, and then for calculating the total stress on the cross section we will add the stresses together. You understand? क्या करेंगे हम, जब दो लोड जो है आपके एक्ट कर रहे हैं यहां पे, तो क्या करेंगे, we will divide the, फर्स्ट करेंगे हम, we will क्या करेंगे, we will divide the load, we will divide the load separately. हम क्या करेंगे, लोड को सेपरेटली डिवाइड करेंगे. सेकंड, फाइंड द स्ट्रेसेस सेपरेटली. देन add the stresses, then add the stresses. तो ये हमारे सुपरपोजिशन जो हमारा प्रिंसिपल था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि when the two loads are acting on any cross section of the structure member and in order to calculate the stresses on the total, in order to calculate the total stresses on the cross section, what we will do, हमारे दो लोड जो है उसके ऊपर लग रहे हैं, we will divide the load separately, then find the stresses as per their loading condition separately, and then we will add the stresses separately. You understand? तब हम क्या करेंगे, इनको separately stresses को कैलकुलेट करेंगे. तो क्या हो गया आपका, अब देखिए, ये हो गया, ये सपोज कर एक स्ट्रक्चर मेंबर,
right? You have your figure 1. You understand? This is your figure 1, and then plus इस तरीके से हम दो लोडिंग कंडीशन सेपरेट करेंगे इसका. दिस इज द बेंडिंग P into E, right? P into E. You understand? So this is ये आपका आ गया बेंडिंग लोडिंग कंडीशन कह सकते हैं, बेंडिंग लोड. और ये आपका आ गया एक्शियल लोड. You understand? So this is your bending load and the axial load. You understand this? So what we have done, we have divide the load separately. हमने क्या किया, जो पहला मैंने स्टेप आपको लिखाया था कि क्या करेंगे, हम लोड को डिवाइड करेंगे सेपरेटली. तो एक जो हो गया आपका एक्शियल लोड, इसको डिवाइड किया, बीम के ऊपर सेपरेट कर दिया. और ये आपका हो गया बेंडिंग लोड. इन दोनों लोड को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया. यू अंडरस्टैंड दिस? तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेसेस को एक्शियल लोड के ऊपर और बेंडिंग लोड के ऊपर सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे. अब ऐड करने का बात आया जहां पे, तो जैसे एज यू नो स्ट्रेसेस आर द टेंसर क्वांटिटीज. स्ट्रेस क्या है आपकी, टेंसर क्वांटिटी है. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच आई एम गोइंग टू टेल यू. देखिए आपके पास जो तीन क्वांटिटीज हैं, एक होती है स्केलर, सेकंड क्या होती है वेक्टर, और थर्ड आपकी है टेंसर. स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर. जो स्केलर क्वांटिटी होगी उसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. क्या दिया होता है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं दी होती. तो इसका हम एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं. जैसे ये 2 kg है, 5 kg है, तो वी कैन ऐड these two quantities together. We can do the algebraic sum of the scalar quantity. कहने का मतलब 2 kg, so this is 7 kg. अब दूसरा है वेक्टर. इसमें आपका मैग्नीट्यूड होगा प्लस और क्या होगा, एंड डायरेक्शन दिया होगा. मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा वेक्टर में. जैसे सपोज करो एक वेक्टर आपका जे है और एक वेक्टर आपका जे है, ये आपका B1 वेक्टर है, तो B2 वेक्टर है. इसका हम अगर सम करना है तो इसका हम एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं, सॉरी वेक्टर सम कर सकते हैं. और इसका जो वेक्टर सम होगा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, राइट? This is the resultant of the two vectors, because this vector is acting toward this direction and this vector is acting toward this direction. Both are not acting in the same direction. तो इसका जो हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा, तो क्या करेंगे, हम इसका वेक्टर सम करेंगे. यू अंडरस्टैंड दिस? हमने क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे. ये हो गया इसका पहला कंडीशन वेक्टर का.
सेकंड कंडीशन वेक्टर का क्या है कि अगर वेक्टर में हम अलजेब्रिक सम हम कब कर सकते हैं, व्हेन वी कैन डू द अलजेब्रिक सम ऑफ द वेक्टर, जब एक वेक्टर जे है और दूसरा वेक्टर भी आपका जे है, व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन द व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स एक्ट करते हैं, देन वी कैन डू द अलजेब्रिक सम। तब क्या होगा, अलजेब्रिक सम हम कर सकते हैं, मींस वी कैन ऐड दीज टू वेक्टर्स टुगेदर। यू अंडरस्टैंड? वेक्टर का क्लियर हो गया। इसका स्केलर का मैंने बताया ही आपको, इसका तो अलजेब्रिक सम होता ही है, इसका सीधा अलजेब्रिक सम ही होगा। अब ये टेंसर। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होगा, इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी होगा, सेकंड डायरेक्शन भी होगा, एंड थर्ड जो है वो क्या होगा, प्लेन होगा, प्लेन्स दिया हुआ। तीन चीजें यहां पे होंगी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन। और जो स्ट्रेस है हमारी, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज द टेंसर क्वांटिटी, स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी। अब देखिए स्ट्रेस को हम, आप कहते हैं दिस इज अ टेंसर क्वांटिटी, तो स्ट्रेस को हम वी कैन नॉट मेक द अलजेब्रिक सम ऑफ द स्ट्रेस, हम स्ट्रेस का अलजेब्रिक सम नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड? बट वी कैन मेक द अलजेब्रिक सम ऑफ द स्ट्रेस। हाउ वी कैन मेक, देखिए इसको मिटा देते हैं। अगर आपका स्ट्रेस जो है, अगर आपका स्ट्रेस, if the stress are acting on the same plane but not in the same direction, अगर जो स्ट्रेसेस हैं आपका तो अब स्ट्रेस को हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो स्ट्रेस का देखिए, अगर आपका इफ द स्ट्रेसेस आर acting on the same, if the stresses are acting on the same plane but in the different, if the stresses are acting on the same plane बट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, ये पॉइंट है समझने वाला कि अगर स्ट्रेसेस जो है आपका प्लेन सेम है लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है, तो इस केस में वी कैन नॉट मेक द अलजेब्रिक सम ऑफ द स्ट्रेसेस। तो क्या होता है इस केस में, इन दिस केस वेक्टर सम कैन बी डन। इस केस में हम वेक्टर सम कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, वेक्टर सम, वी कैन मेक द वेक्टर सम इन दिस केस। बट अगर स्ट्रेसेस आर एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन, याद रखिएगा स्ट्रेसेस आर
acting on the same plane but in the same direction, same plane and in same direction, in same direction, right? Then we can make the algebraic sum. तब हम इसका क्या कर सकते हैं? We can make the algebraic sum. तो इस केस में हम इसका algebraic sum कर सकते हैं. क्लियर आ गया? क्लियर हो गया कि स्ट्रेसेस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं? यू कैन अंडरस्टैंड. अगर आपकी स्ट्रेस जो है वो सेम प्लेन के ऊपर एक्ट कर रही है और उसका जो डायरेक्शन है वो भी क्या है? सेम है, सेम प्लेन सेम डायरेक्शन, देन वी कैन मेक द अलजेब्रिक सम ऑफ दिस. अब देखिए, जहां से देखिए, जो डायरेक्ट स्ट्रेस थी वो दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा एक्स, जे सिग्मा एक्स थी, राइट? ये आप कह सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस. तो इसका जो डायरेक्शन था वो क्या था? डायरेक्शन क्या था? एक्स डायरेक्शन में. और प्लेन क्या था? सेम प्लेन के ऊपर एक्ट कर रही है. प्लेन क्या था? सेम प्लेन. अब आ जाइए, अब जो सिग्मा एक्स जिसे हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं, इसको भी हम सिग्मा एक्स से करते हैं डिनोट, बेंडिंग स्ट्रेस. अब देखिए, जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो हमें कैसे मिलती है? हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन को ड्राइव करते हैं in the x direction, means we will find the epsilon x, deformation of the member in the x direction, that is the equation of the strain, and then we will multiply it by E, Young modulus of elasticity. So then you will get the sigma x. आपको सिग्मा x मिलता है. तो जहां पे देखिए, जो बेंडिंग स्ट्रेस है इसका भी डायरेक्शन क्या है? एक्स डायरेक्शन में. जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसका भी डायरेक्शन क्या है? एक्स डायरेक्शन में है. इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी ये दोनों स्ट्रेसेस सेम प्लेन के ऊपर हैं, एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन एंड इन द सेम डायरेक्शन. सेम प्लेन के ऊपर है और सेम डायरेक्शन में है. सो देन वी कैन make the algebraic sum of these two stresses to find the total stresses on the cross section of the member. You understand? ये आपको पॉइंट समझ आ गया कि जो मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दिया था उसमें कहा था कि if you want to calculate the when the two loads are acting on any cross section of the beam, bar, member, जो भी है, if two loads are acting on that and you want to calculate the stresses due to these two loads, so what we will do, what the super principle says, he says separate the load or divide the load separately, then find the stresses on that load separately, and then you add the stresses all together to find the total stress in the cross section. अब पॉइंट ये था कि स्ट्रेस जो है, ये इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया कि स्ट्रेस जैसे आपको पता है टेंसर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या स्ट्रेस को ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. दिस इज द पॉइंट विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू. और ये जो आपको जो मैंने पॉइंट दिए हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द थ्योरी. कभी इसका एक आधे मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड. वी कैन ऐड द स्ट्रेसेस algebraically if the stresses are acting on the same plane and in the same direction. और जो ये लोड्स, ये दोनों लोड से, जैसे ये दिस इज द लोड P एक्शियल लोड था, इससे मुझे डायरेक्ट स्ट्रेस मिला, नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज P अपॉन A. और ये जो आपका बेंडिंग लोड था ये मुझे मिला बेंडिंग स्ट्रेस मिला. तो दो लोड से हमें we got the two stresses, normal stress as well as the bending stress. Now the question is whether these two stresses are acting in the same direction. Plane तो आपका एक ही है,
बट क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन की सेम है? यस, क्योंकि ये जो सिग्मा एक्शन है ये एक्शन लोड है, तो ये आपका क्या होगा, इन द एक्स डायरेक्शन आपको नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा सिग्मा एक्स। और जो बेंडिंग स्ट्रेस है ये भी आपको एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि जो आपकी बेंडिंग स्ट्रेस हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन को फाइंड आउट करते हैं। कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन डिफॉर्मेशन, जब हम एक्शन लोड इसको इस तरीके से लगाएंगे तो इसकी डिफॉर्मेशन जो है किस तरीके से होगी, यू अंडरस्टैंड। तो इसकी जो डिफॉर्मेशन है एप्सिलॉन, दैट वी विल टेक इन द एक्स डायरेक्शन, तो E into epsilon x, this is sigma x. So you can say both the stresses are acting in the same direction and on the same plane, so we can make the algebraic sum of these two stresses together. You understand? जी आपको क्लियर हो गया? अब इसको मिटा देते हैं। This we will, जहां तक तो सारी चीजें आई थिंक क्लियर टू यू। अब देखिए, जो आपका ये लोड था, इफ ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका जो सिग्मा एक्स था दिस इज इक्वल टू पी अपॉन ए, राइट। और जो इसका था बेंडिंग स्ट्रेस का सिग्मा एक्स, वो कितना था, दैट इज एम बाई मैक्स अपॉन आई। यू अंडरस्टैंड, एम बाई मैक्स अपॉन आई। आप जहां से देखिए, आप इसके हम स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड आउट बताते हैं। ये जो आपकी बेंडिंग, सॉरी, ये जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस होगी सिग्मा एक्स, तो इसका दिस इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्या होती है, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होगा, सपोज इधर से लेते हैं, ये एक्चुअल है टेंसाइल स्ट्रेस वी हैव टेकन, so this is uniformly distributed like this. Mean the stress at every point is same or equal. जो स्ट्रेस आपकी होगी हर पॉइंट के ऊपर वो क्या होगी, इक्वल होगी, तभी हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेस। यू अंडरस्टैंड? दिस इज, इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट है ये यूनिफॉर्मली distributed. Second, stress is same at every point. You understand? Stress is same at every point. Plus, right? Plus सपोज हम इस सेक्शन के ऊपर निकाल रहे हैं, ये सेक्शन आप ले लीजिए जाके। अब हम इस सेक्शन के ऊपर निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको साइड पे लिखते हैं। तो
यस लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपकी बेयरिंग लीनियरली ये लीनियरली बेयरी करेगी, ये इस तरीके से होगी। राइट, इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो सिग्मा एक्स होगा, देखा होगा एम बाई मैक्स पान आई, दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस। राइट, तो इसमें भी दो पॉइंट आपके आगे क्या है, इट फर्स्ट आ गया, इट वेरीज लीनियरली, और सेकंड जो है, सेकंड क्या है, नॉट सेम एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर ये जो है सेम नहीं हो। यू अंडरस्टैंड दिस? ये आपकी हो गई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट वेरीज लीनियरली। राइट, ये लीनियरली वेरी करेगी। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, व्हेन वी विल ऐड दिस, जब हम इसको ऐड करेंगे तो जे इसको ऐड करेंगे हम, सपोज दिस इज ऐड। अब देखिए इसमें अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेस ऑन द टॉप एंड द बॉटम, ये जो आपकी कौन सी स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस। टॉप में भी देख लें और बॉटम में भी देख लें, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर इफ आई विल टेक द टेंसाइल स्ट्रेस, जो आपकी टेंसाइल डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन, इफ आई विल टेक दिस पॉजिटिव, तो जहां पे टॉप और बॉटम में जो आपकी P अपॉन A है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और J जो है टॉप में पॉजिटिव है लेकिन बॉटम में ये नेगेटिव है। मींस टॉप में अगर ये टेंसाइल है तो नेगेटिव, ये जहां पे क्या है, कंप्रेसिव है। यू अंडरस्टैंड? तो आप कह सकते हैं सिग्मा मैक्सिमम टेंसाइल, ठीक है। ये सिग्मा मैक्सिमम टेंसाइल कहां पे होगा, टॉप में, और जो सिग्मा मैक्सिमम, दोनों साइड सिग्मा मैक्सिमम होगा, बट क्या होगा, एक टेंसाइल होगा एक कंप्रेसिव होगा, बट होगा टॉप और बॉटम में। इन केस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा इज मैक्सिमम इन बोथ द केसेस। अब देखिए जब हमने इन दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमारी किस तरीके से, देखिए दिस इज टूवर्ड दिस डायरेक्शन एंड दिस इज दिस टूवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये जहां पे क्या होगा, ये ऐड हो जाएगी। इट इज लाइक दिस, मैं दोनों को ऐड करके ये हो गया। बट ये नीचे से बॉटम में, ये इधर है और ये इधर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जहां पे भी आपको स्ट्रेस मिलेगी, लेकिन इस तरीके से मिलेगी। यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड दिस? तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रेस मिलेगी जहां पे राइट, ये इस तरीके से होगी। राइट, तो इस तरीके से इसका डायग्राम आपका बनेगा। यू अंडरस्टैंड? जो आपका डायग्राम होगा वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से आपका
डायग्राम बनेगा। तो इस केस में भी जो आपका सिग्मा मैक्सिमम टेंसाइल का टॉप पे होगा और सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेशन का कहां पे होगा, बॉटम में होगा। तो बॉटम में भी सिग्मा मैक्सिमम टॉप होगा और जहां पर भी सिग्मा मैक्सिमम होगा, जैसे इस तरीके से था, लेकिन सिर्फ ये है कि ये कंप्रेशन में होगा एंड दिस इज टेंशन में। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका बना व्हेन द टू लोड्स आर एक्टिंग ऑल टुगेदर ऑन ए स्ट्रक्चर मेंबर। उस वक्त हमें इस तरीके से हमें सिचुएशन मिलेगी कि हमारा जो टोटल स्ट्रेसेस का होगा, तो हमारे टोटल स्ट्रेसेस हमें इस तरीके से मिलेंगे आपको। यू अंडरस्टैंड? तो आप कह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिलेगी, अगर मैं इसका क्या है P/A टॉप की लिखता हूं, सिग्मा मैक्सिमम टेंशन, ये लिख लेते हैं सिग्मा मैक्सिमम टेंशन। तो सिग्मा मैक्सिमम टेंशन क्या आएगा, इधर लिख लेते हैं, सिग्मा मैक्सिमम टेंशन क्या है, जे वाला इस डायरेक्शन दोनों मींस P/A, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ऊपर भी और नीचे भी, प्लस ऊपर से क्या है, ये पॉजिटिव है, दिस टेंशन में है, तो क्या होगा M बाई मैक्स अपॉन, क्या हो गया सिग्मा मैक्सिमम टेंशन। अगर टोटल क्रॉस सेक्शन में, जो इसका क्रॉस सेक्शन है उसमें टोटल मुझे सिग्मा मैक्सिमम टेंशन में निकालना है, अगर जे आपकी लोडिंग कंडीशन होगी तो जे आपका एक इक्वेशन बनेगा। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 और सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेशन में क्या होगा, P/A। देखिए बॉटम में भी कंप्रेशन, बॉटम में भी क्या है, ये P/A है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो P/A तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट ये बॉटम में क्या है, कंप्रेसिव है, नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा -M बाई मैक्स अपॉन आई। यू अंडरस्टैंड? So these are the two equation, total tensile stress, sigma maximum in tension in this case, this is the equation, sigma maximum in compression in this case, this is the equation. You understand? So these are your this. और अगर का एक्चुअल लोड जो है वो कंप्रेसिव होगा, इफ योर एक्चुअल लोड इज कंप्रेसिव, तो इक्वेशन सेम रहेगी, सिर्फ इसमें P/A की जगह -P/A और -P/A आएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, टॉप से लेके बॉटम तक आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस इस तरीके से आएंगी इसमें, तो इसमें टॉप में भी -P/A आएगा, बॉटम में भी -P/A आएगा, बाकी तो ये सेम रहेगा। ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो आपकी स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सेम रहेगा। -P/A, अगर आपको सिग्मा मैक्सिमम टेंसाइल निकालना है, दैट इज -P/A प्लस M बाई माई X अपॉन I, एंड सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, -P/A माइनस M बाई मैक्स अपॉन I। सो दिस इज द टोटल स्ट्रेस टेंशन में इन केस ऑफ दिस। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि अगर आपको दो लोड कंबाइंड लोडिंग है किसी मेंबर के ऊपर, तो उस कंबाइंड लोडिंग का व्हाट इज द इफेक्ट, हमें क्या मिलेगा, हाउ वी विल कैलकुलेट द सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन इन दैट केस, हाउ वी विल फाइंड द सिग्मा मैक्सिमम इन कंप्रेशन इन दैट केस। तो ये आपको सारा डिटेल में मैंने कंप्लीटली, अब डिटेल में हर चीज, इसका जो भी कंसेप्ट था ये क्लियर करके आपको दे दिया। यू अंडरस्टैंड? तो आज इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और 4-5 मिनिमम 4-5 न्यूमेरिकल में
इसके निकालूंगा, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कि ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको एग्जाम में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वन आ सकते हैं। तो इसका सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट्स एप्लीकेशन वेल, हम एक अच्छे तरीके से ये जो हमने आज ये पढ़ा है इसकी हम प्रॉपर एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड कर सके। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि दैट विल आल्सो टेक हाफ एंड 1.5 आवर लाइक दिस, 4-5 न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम आई विल टेक, सो दैट ये जो टॉपिक है ये विद एक्सप्लेनेशन प्लस कैलकुलेशन प्लस न्यूमेरिकल, ये सारा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। यू अंडरस्टैंड? सो थैंक you very much. Today that is enough, and next lecture tomorrow I will just solve the numericals, variety of numericals pertaining to this topic. You understand? So thank you very much.